So, what we are going to study in this chapter? Listen. First, we will see what is water. Then, next resources, which you had already read in chapter number 1. है ना? Natural resources, man-made resources, renewable resources, and non-renewable. Non-renewable resources means Which cannot be on which is limited or non-limited. limit is limited in our Good. उसके बाद how water is renewable resources कैसे है वो पढ़ेंगे. Percentage of water on और hydrological cycle यानी कि water cycle क्या होती है उसमें 3-4 चीजें evaporation, condensation, vaporization और precipitation. what is precipitation? Center down of Precipitation means rainfall. Simple. इसको chemistry वाला precipitation. Okay, let's see then. What is water scarcity? पानी बचाना. What is water management? Water management के बाद conservation. Why there is a need of water conservation? Why there is a need of water management? Then what is multi-purpose river valley project or river dams? Merits of dams, demerits of dams, and rainwater harvesting and dam to dam irrigation. Clear? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पढ़े हम चैप्टर पानी क्या होता है? Water, how you will define water? H2O. हाँ, Clear होता है essential for life. देखो, Loss ध्यान रखना water. how you have to define. It is clear, tasteless, liquid that is essential for Life. clear, Yes. tasteless, liquid which is essential for Life. it is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. कोई दिक्कत? What is resources? आप लोग ही बता दो. Everything available in nature, environment, naturally used for satisfying our need. Everything which is available in the environment, which is used to satisfy our needs, technologically, economically, culturally. That is known as Resources. water, natural resources, and man-made resources. Natural. हाँ, okay. हाँ, types of resources on the basis of Origin. इसको थोड़ा याद करो. On the basis of Origin. on the basis of Exhaustively. on the basis of Ownership. ownership and last on the basis of on the basis of origin, biotic and on the basis of exhaustibility, on the basis of status of development, status of development, status of develop. On the basis of last basis of ownership, और E Z याद है? Exclusive, economical, कितना 12 nautical miles और 200 nautical miles? 200 nautical miles क्या है? 200 nautical miles से ध्यान रखना. चलो ये पढ़ लोगे, है ना? चलो आगे देखो फटाफट. ध्यान दो, which is according to the mention in book, 3/4 of the world is covered with water. 4th part है वर्ल्ड का. उसमें ये 1, 2, 3 पार्ट में क्या है? क्या है? पानी. ध्यान रखो. उसके बाद ये 3 पार्ट जो कितने परसेंट है? 2.5. इधर ध्यान दो, बुक में बस ध्यान दो, फिर इधर ध्यान. जो 3 पार्ट है यानी कि 3/4 है, that is equal to 71%. उसी 71% में से 3% क्या है? और उस 3% में से 2.5 क्या है? फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है या नहीं? अनअवेलेबल है. जो ग्लेशियर्स में क्या है? लॉक है. और उसमें ही 5% 0.5% क्या है? फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है. यानी कि रेन वाटर हो गया, रिवर्स का वाटर हो गया और वाटर वेल्स और अंडरग्राउंड वाटर. चलो इधर ध्यान दो. कितने परसेंट कितने रेशियो में? 3/4 और 3/4 में कितना परसेंट हमारे पास है? 71% में कितने परसेंट वाटर अवेलेबल है? 3%. 3% में 2.5% अवेलेबल है या नहीं है? 0.5% अवेलेबल है. ओके, सिंपल. अब आगे देखो, है ना? हाउ वाटर इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी. क्या वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? यस. पर रिन्यूएबल कैसे? क्योंकि ये नेचर में सर्कुलेट होता है. ये पहले वाटर है, फिर वो ये पहले वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में है, फिर वो एवापोरेट हुआ, एवापोरेट हो जाता है. ठीक है. और फिर गैस बन जाएगा. नहीं तो इवोपरेट हो रहा है तो मतलब वही गैस बन गया. अरे नेचर से वो वापस सिंपल सी चीज है. जब वाटर है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, वाटर क्या होता है? इवोपरेट होता है. इवोपरेट मतलब लिक्विड से लेकर वो पानी में चला जाता है, गैस बन जाता है. जैसे ही गैस बनता है वो जाता है क्लाउड्स में. क्लाउड्स में होता है कंडेंसेशन. क्या होता है? कंडेंसेशन. यानी कि ठंडा हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है. उसके बाद
वही पानी लिक्विड मतलब वही जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में एज अ प्रेसिपिटेशन वो कहाँ आता है मिक्सचर, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। दैट्स व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ध्यान रखिएगा, पक्का पक्का है ना। देखो लिखा हुआ है वाटर सर्कुलेट्स इन नेचर इन नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? लिक्विड, वेपर, आइस। आइस मींस सॉलिड, ठीक है। As a result, the water that evaporates return to the earth in the form of rain or in the form of precipitation, ठीक है। Simple water became a renewable, that's why water became a renewable resource, clear? ये आंसर वाटर साइकिल रिचार्ज होता है पानी वापस सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, सिंपल। चलो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, अब इसकी डेफिनेशन, ठीक है वही चीज है, देखो डेफिनेशन simple continuous circulation of water in our atmosphere system, that is known as water cycle। और दूसरी definition sum of all process evaporation, condensation, vaporization in which precipitation in which water move from land and ocean surface to the atmosphere and generate back in the form of precipitate। clear? अब ये definition टफ लगी होगी तो ऊपर वाली याद कर लेना, आखिरी वाली देख लो। हाइड्रोलॉजी टेक्निकल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल is the circulation of water with in the atmosphere of earth. Hydrological cycle is the circulation of water in the hydrosphere of the earth in different forms such as solid, liquid and various clear. Water is cyclic resources. Water is reused. 71% planetary water found in ocean, 59% of water on land surface evaporates and return back to the atmosphere and remaining is the fresh water। बस 71 plus 59 एक सेकंड PLANET मतलब इधर ध्यान दो, इधर PLANET मतलब हाँ उसे 8 क्या लगा दें तो तीन चीज लगा दें बुक किस प्लानिटरी, ठीक है। 71% कितना है ओशन में, मतलब ओशन में प्लैनेट ओशन में, और 59% क्या है सरफेस पे, ठीक है। आगे बढ़ो, बचा हुआ क्या है फ्रेश वाटर, रिवर, वेल्स, अंडरग्राउंड वाटर। ये आंसर इवैपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, infiltration, runoff, collection। पढ़ लेना, जस्ट सिंपल लिखा हुआ है। हां बोलो बेटा क्या बोलो। वो 71% में 59% हाँ उसी का ही देखो टोटल 100% है ना, मतलब और 100% है और के 100% में से 79% क्या है पानी है, बचा हुआ क्या है लैंड है, बचा हुआ क्या है लैंड, और उस 79% में ओशन में से 59% क्या है लैंड। बस ठीक है, चलो देखो ये पढ़ लोगे, पढ़ा हुआ आपने इवैपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ मतलब बहते हुए पानी को क्या कहते हैं runoff। कल बताया था मैंने आपको, है ना, स्टोरेज होता है पता ही होगा। वाटर स्कैरसिटी मींस lack of fresh water। पानी की कमी हो जाना, दैट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना, सेव करने के लिए। हां वाटर कंजर्वेशन मींस ऐसी चीज जहां पर हम पानी को क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट activity of planning, development, distributing and managing the optimum use of What is management? मैं ऐसा बोल सकता हूँ the way we are the process of conservation of water is known as water management. हाँ बोल सकता हूँ ना, yes है ना। ये चीज समझना कि कंजर्वेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। अब आगे चैप्टर पे स्विच हो रहा हूँ। water management वाटर मैनेजमेंट मींस जिस तरीके से हम लोग वाटर को रिजर्व करके रख रहे हैं, वाटर को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, वाटर को कंजर्व करके रख रहे हैं, इन्हीं प्रोसेस को क्या कहते हैं वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसा तरीका जहां पर हम वाटर को मैनेज करें, ऐसा तरीका जहां पर हम वाटर को बचा के रखें, ऐसा तरीका जहां पर हम वाटर को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं, ऐसा तरीका जहां पर हम वाटर का कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अब देखो नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर management। हमें पानी को कंजर्व करने की और वाटर को बचाने की जरूरत क्यों है।